evening दोस्तों. Myself Orindam Das. Once again I welcome to all of you in my YouTube channel. दोस्तों आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इन दोनों को दैट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, हाउ टू गेट और हाउ टू कैलकुलेट वी विल डिस्कस टुडे. सो लेट्स हैव ए लुक. वीडियो को अंत पहले से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा स्किप करेंगे तब आप मतलब यह तो प्रॉब्लम है, दैट इज़ आसाम है, तो आप नहीं समझ पाएंगे. तो मेरे तहे दिल से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले से लास्ट तक ज़रूर देखें और आप लोग इससे जो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑनर्स के हैं, पास के हैं, उन सब वो सभी कैसे आप लोग घर बैठे वो कैलकुलेट कर पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह सिखाऊंगा. तो काइंडली बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि कैसे हाउ टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो दोस्तों आइए देखते हैं. चलिए. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यह एक क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा calculate net domestic product at factor cost and net national disposable income. So what are the items has been given here? As you can see, items in the left hand side and in the right hand side. At the right hand side it has been given the amount in crores. First, that is number 1, net factor income to abroad 30 crore. Sales, it has been given 2000 crore. Subsidies 20 crore. Consumption of fixed capital 50 crore. Net current transfers to abroad. Net current transfers to abroad 10 crore. That is, it is the minus. It has been given in negative item. Okay, minus 10 crore. Okay, then closing stock. Closing stock 100 crore. Opening stock 200 crore. It is the terminology which is used in accountancy. The students of the commerce stream, you can get it easily. What is closing stock and what is opening stock in the chapter of trading and profit and loss account. Whenever we do the sums from trading account, that is trading and profit and loss account, it is the first term we use. First we start from the item opening stock and it will put at the time to opening stock, and last year by closing stock. Opening stock, actually it is used the last year's closing stock. Whenever we prepare a trading account, it will put here to opening stock, and lastly whatever the balance has been shown, that is the closing stock. Okay, so जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से हैं वो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होते, ओपनिंग स्टॉक क्या होते. स्टॉक का जब चैप्टर आएगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को डिस्कस करूँगा. वीडियो को देखिएगा ज़रूर. तो क्लोजिंग स्टॉक इट हैज़ बीन गिवन हियर 100 crores and opening stock it has been given 200 crore. Okay, next, intermediate costs. Intermediate costs, it has been given 100 crore, and lastly it was indirect tax, that is 130 crore. Now from the above information we have to calculate how to calculate net domestic product at factor cost and net national disposable income. Net national disposable. So firstly
we understood about the net national disposable income. So you can see that net national disposable income is the sum of NNP at market price, net national product at market price, which is called in national income also, net national product at market price, and net current transfers from the rest of the world, that is NFIA. Okay, NFIA, net current transfers from the rest of the world. It deducts all current transfers. It deducts from it actually from this item all current transfers, all current transfers, that is current taxes on income, wealth, etc., social contributions, social benefits, and other current transfers payable to non-resident units. हाँ, मतलब यहाँ से जो डिडक्ट किया क्या आइटम जाते हैं करेंट टैक्सेस ऑन इनकम, करेंट टैक्सेस जो होते हैं इनकम के ऊपर वो डिडक्ट होते हैं, करेंट टैक्सेस ऑन वेल्थ वो भी डिडक्ट होते हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन रिलीफ फंड एट्सेट्रा में जो दिया जाता है वो भी माइनस होते हैं, सोशल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया गया जो कॉस्ट होते हैं वो भी हम माइनस करते हैं, एंड अदर करेंट ट्रांसफर्स पेएबल टू नॉन रेसिडेंट यूनिट्स, अदर करेंट ट्रांसफ़र जो कि हमारे बाहर भेजा गया है वो सभी क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं। और प्लस कौन कौन से आइटम्स प्लस होते हैं, करेंट ट्रांसफ़र रिसीवेबल बाय द रेसिडेंट यूनिट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे देश को बाहर के देश से कोई रुपया मिला, कोई अमाउंट, दैट इज इट इज़ एक्चुअली इक्वली बिलियम स्टेट ऑफ द लेवल ऑफ द टर्म NFIA। ओके, सो यह टर्म्स हम यूज़ करेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को बाहर करने के लिए। लेकिन पहले हमें जानना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं। तो आप लोग चाहे तो ये लिख भी सकते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ द सम टोटल होते हैं ऑफ द नेट वैल्यूज़, नेट होते हैं, ग्रॉस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताएगा फैक्टर कॉस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर कॉस्ट का क्या क्या मतलब होता है कि आप लैंड यूज़ कर रहे हो, आपने आप कोई लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो, या फिर कैपिटल आपने लाया गया है कि बैंक से हो किसी से हो तो उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन से आपको आपने मतलब प्रॉफिट वो आप लोगों ने यूज़ कर लिया तो सारे सब मिलाकर आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। सिंपली आप समझ लीजिए कि जो रॉ मटेरियल्स आप परचेज़ करते हो, कहीं से आप कोई चीज़ें लाते हो, तब सबको क्या होता है, फैक्टर होते हैं। सो यू व्हेनेवर यू आर यूजिंग द फैक्टर्स टू गेट समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग, यू हैव टू पे कॉस्ट। ओके, सो वो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट के लेवल से, दैट इज़ वेजेस देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें क्या होते हैं हमारे लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि नेट वैल्यूज एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑल द फैक्टर कॉस्ट, मैंने जैसा अभी आपको बताया फैक्टर कॉस्ट होते हैं इज़ द सम टोटल नेट वैल्यूज। नेट, आप एक चीज़ें हमेशा याद रखें कि जब भी नेट के बारे में बताया जाएगा तब आप यह मान लीजिए कि कोई वैल्यूज हमें दिया गया माइनस करके, मतलब इसको डिडक्ट करके। ठीक है, नेट वैल्यूज एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो चलिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होते हैं। ठीक है, मैं आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्किप करके या फिर पॉज करके पॉज करके आप इस जो अपना जो अगर लिखना पड़े तो आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप लोग आसानी से गूगल में सर्च कर लीजिए। मैंने थोड़ा बहुत आपको दिया, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बताऊंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए हम करते हैं कि कैसे पहले हमें
निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हम यह निकालेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं करता हूँ, आप लोग देखिएगा। थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ, तो पहले मैं लिखूँगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे आप लोगों को बताया कि आप लोग जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तब आप यह चीज़ें मत यूज़ कीजिएगा। क्यों यूज़ मत कीजिएगा? मतलब इसीलिए क्योंकि आपको मार्क्स डिडक्ट करने का भी चांसेस है। सो हमेशा आप इस एब्रिविएटेड फॉर्मेट, मतलब शॉर्टकट फॉर्मेट मत यूज़ करिए, पूरा फॉर्मेट आप दीजिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी सिर्फ आसानी के लिए मैं आप लोग को यह दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले था नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। यह पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यह एक अमाउंट है जो एब्रॉड को जाएगा। तो पहले मुझे तो कोई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे कोई आइटम है कि नहीं, या फिर कोई टोटल टर्नओवर हुआ कि नहीं, यह देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो है यहाँ पर सेल्स दिया, दैट इज़ टोटल टर्नओवर, मतलब पूरा देश का जो टोटल सेल्स हुआ है वो दिया गया है यहाँ पर 2000 रुपया, ठीक है। तो मैं पहले लिखूँगा सेल्स, ओके, सेल्स। उसके बाद यहाँ पर आता है, आप लोग देखिए ये जो चीज़ होते हैं नंबर 1, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पर यह ऐड हो जाएगा, ऐड हो या फिर लेस हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे घर में जो इनकम हो रहा है वही हम देखेंगे। तो देखिए सब्सिडीज़ यहाँ पर नहीं आएगा। सब्सिडीज़ का टर्म्स टोटल पर्सनल या फिर प्राइवेट इनकम पर इसका टर्म्स यूज़ होता है। यहाँ पर इसका कोई जो आइटम्स है यह एड लेस, मतलब यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नंबर 4 को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को कहते हैं शॉर्टकट पर डेप्रिसिएशन। तो मुझे जैसा दिया गया दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यह पूरा आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेट करेंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड, करेंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड। यह जो टर्म्स होते हैं करेंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड, ये भी चीज़ हमारे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को जाएगा, तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आता है देखिए क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। दोनों टर्म्स यहाँ पर इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही यहाँ पर है, तो दोनों यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसका एक अलग सा फॉर्मूला हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, दैट इज़ इन दोनों को कहते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। हम ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये वाला आपको याद रखना होगा कि चेंज इन स्टॉक दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यह आपको फॉर्मूला आपको होना चाहिए, मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग का बैलेंस कितना होता है वही हमारे लिए चेंज इन स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो टर्म्स आता है वो होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना? हाउ मच? 100 रुपीज़,
इंटरमीडिएट कॉस्ट्स होते हैं यहाँ पर 100 रुपीज़। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा भूल मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो टर्म्स होते हैं ये 100 नहीं होगा, ये 1000 होगा, क्योंकि उसके बाद इसका मिलना नामुमकिन हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, प्लीज़ करेक्टिफाई दिस वन। इंटरमीडिएट कॉस्ट होंगे 1000 रुपीज़, ओके, 1000 रुपीज़। सो प्लीज़ रेक्टिफाई इट। तो इसका क्या होता है, हमें यहाँ पर लिखना होगा इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट किसे कहते हैं? मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स ख़रीदा जाता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट्स। अंतर्वर्तीकालीन जो खर्चा हम लोग पे करते हैं, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हम बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए, जो उसका जो कॉस्ट हम बियर करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट्स। INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट कॉस्ट्स, ओके। उसके बाद लास्ट को आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर नहीं बैठेगा, यह डायरेक्ट को चला जाएगा। हाँ रुकिए, यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ, जैसे कि सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स जो आइटम्स होता है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हम जो टैक्स पे करते हैं वही होते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर लिख भी ले कि यहाँ पर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा लिखे तो भी कोई भूल नहीं है। अगर आप लिखना चाहें कि जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि ओनली नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और तो कोई आइटम नहीं है। चलिए हम अब एडलेस करते हैं, पहले आइटम्स को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सेल्स कितना आता है? सेल्स आता है 2000 रुपया। अभी कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल कितना आता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर को 50, दैट इज़ 50। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा चेंज इन स्टॉक, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक यू कैन सी, closing stock is 100 and opening stock is 200. So closing stock we can put here 100 and opening stock, that is minus opening stock 200, ठीक है। and you can see intermediate costs, we can put here a minus symbol, इंटरमीडिएट कॉस्ट। हाउ मच इंटरमीडिएट कॉस्ट? मैंने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया, एज क्वेश्चन पर भूल दिया गया था, 1000 था लेकिन बुक पर 100 दिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000, ओके। सो मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1000, ठीक है। एंड लास्ट को आप देख सकते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ कितना है? 130, 130। तब हम यहाँ पर क्या दिया था? माइनस 130, ओके। नाउ वी विल कैलकुलेट। बहुत अच्छी तरीके से, मतलब प्रिसाइजली आप लिखेंगे, कोई हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट का भी यूज़ मत कीजिएगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में हमेशा ही सिंपल एंड प्रिसाइजली आपको उसे दिखाना है। तो मैं जैसा करता हूँ, मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा एक नेचर है कि मैं लोग तो यहाँ से निकालते थे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ पर ख़त्म है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आप लोग सभी को सजेस्ट करूँगा कि मैथमेटिक्स जितना प्रिसाइज हो उतना ही आप लिखिएगा, ठीक है। तो 2000 माइनस 50, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 100 माइनस 200। देखिए 100 माइनस 200 तो कितना आता है? -100, ओके,
माइनस 100। आप इसको अभी ब्रैकेट से मत निकालिए, ठीक है, बाद में दिक्कत आ सकता है। उसके बाद होंगे माइनस 1000 एंड एज यू कैन सी माइनस 130। ओके, सो 2000 माइनस 1000 माइनस 130 minus 50, minus 130 minus 50, how much? Minus 180 and minus 100 प्लस एंड माइनस, दैट इज़ अगर हम ब्रैकेट से माइनस 100 को निकालते तो प्लस एंड माइनस इन दोनों को जो इनटू में होता है तो प्लस इनटू माइनस, दैट इज़ माइनस। ओके, सो here you can see 1000 minus 280, 0 2 10 minus 1 9 9 minus 2 7, so it will be the amount will be rupees 720 crore. So it is नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जो डोमेस्टिक इनकम जो होते जैसे सेल्स होते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, स्टॉक के बारे में बताया गया, टैक्स के बारे में बताया गया, ट्रांसफ़र्स के बारे में बताया गया, रॉ मटेरियल्स को परचेस करने के लिए बताया गया, ये सब आपको लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि मैंने रोमान 3 दैट इज़ सब्सिडीज़ को क्यों नहीं लिया। सब्सिडीज़ को इसलिए नहीं लिया कि सब्सिडीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सनल और प्राइवेट इनकम। सो अगर मुझे यहाँ क्वेश्चन पे कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट पर्सनल इनकम, तब मैं सब्सिडीज़ के बारे में मेंशन करता, लेकिन यहाँ पर सब्सिडीज़ का कोई बात नहीं, एज बिकॉज we have to calculate net domestic product and also net national product, so there will be no reason to put the item here. Okay, अभी हम बाहर करेंगे net national disposable income. Okay, फिर से मैं आप स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको मैं ज़रूर दूंगा। काइंडली मेरे वीडियोस को पहले से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ से हाउ टू कैलकुलेट नेट नेशनल डिस्पो, हाँ यहाँ तो दूर चला गया, इनकम, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को बाहर करने के लिए हमें पहले आइटम्स, दैट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जितना भी आइटम्स है पूरा हमें लेना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम एडलेस करते करते जाएंगे। सो जो चीज़ हमें यहाँ पर रख रहा है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके, सॉरी, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमें डिस्पोज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान पर रखना होगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान पर रखना होगा कि 130, हाँ, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, यह टर्म्स यहाँ पर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? मैंने पहले वीडियो पर आप लोगों को बताया कि जो टैक्स होते हैं वही टैक्स हमेशा माइनस के टर्म्स पर लेना, लेकिन हमें यहाँ पर जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होते हैं, इसके भरोसे हमें यहाँ पर जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होंगे, हमें यहाँ पर प्लस होना चाहिए। क्यों प्लस होना चाहिए? आप देखिए, हम हाउस होल्डिंग और हम डोमेस्टिक सेक्टर से यह जो टैक्स होते हैं वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट को देते, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज़ हमसे ही गवर्नमेंट टैक्स लेकर बाहर को टैक्स देते हैं। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से हम ये देखें तो यह गवर्नमेंट का एक प्रकार का इनकम हो रहा है, ठीक है। सो आपको हमेशा याद रखना कि जब भी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बताएंगे आपको हमेशा यह जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है यह चीज़ आपको हमेशा प्लस लाना है। क्यों प्लस लाना है? क्योंकि द गवर्नमेंट bears all kind of expenditure in the form of tax whichever collect from us, okay, you have to mind it. So net indirect tax यहाँ पर that is net national disposable income पर क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। अभी देखिए और एक बातें हैं, अभी देखते हैं कि क्या क्या रह गया। नंबर 1 आप देख सकते हैं नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, देखिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं दिया। नेट फैक्टर इनकम जो कुछ गवर्नमेंट बाहर के देश से कुछ लाए थे, मान लीजिए कुछ इंपोर्ट सामग्री लाए थे, तो इसके लिए जो इनकम होते फैक्टर इनकम, वही फैक्टर इनकम बाहर से लाया था फैक्टर के लिए, मतलब कुछ चीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स वो लाए थे, तो इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इनकम यहाँ से लेकर गवर्नमेंट कहाँ पर देगा, बाहर के देश में देगा। तो यह चीज़ हमारे लिए क्या होंगे, गवर्नमेंट के लिए क्या होंगे, अथवा गवर्नमेंट के लिए यह माइनस होंगे, ठीक है, यह माइनस होंगे। हाँ, अभी आप देखेंगे और क्या क्या बचा। सब्सिडीज़ नहीं होगा, सेल्स तो हमने दिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन हमने दे दिया। नेट करेंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफ़र, हाँ नेट करेंट ट्रांसफ़र, करेंट ट्रांसफ़र जो होते हैं, जो वेल्थ जो सोशल बेनिफिट वो जो तो होते हैं वो हम एब्रॉड को भेजने वाले हैं। तो यहाँ से कोई बेनिफिट आएगा नहीं आएगा। यहाँ देखिए ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तब हमें भी यहाँ पर माइनस से स्टार्ट करना होगा। क्या था, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू एब्रॉड, यहाँ पर हम लिखेंगे नेट करेंट transfers to abroad. So now we will put NDP at factor cost कितना था 720 plus net indirect tax how much 130 net factor income to abroad, net factor income to abroad how much 30 minus 30 minus net current transfers to abroad, net current transfers to abroad within bracket minus 10, within bracket minus 10, okay. Now we will calculate all this, equals to 720 plus 130 minus 30, it will be only 100. Now minus within bracket minus 10, so minus minus plus 10, so 700 100 800, so rupees 800, 2 and 1 3 rupees 830 crore. So you can see the expected result, net national disposable income, जहाँ पर हमें दिया गया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाहर करने के लिए हमने किया। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स कभी माइनस नहीं होगा, प्लस होंगे, क्योंकि ये हमें से टैक्स लेकर गवर्नमेंट बाहर से जो उनको पे करने वाले, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं अगर इन सिंपल सेंस कि गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू आता है टैक्स के मार्फत, ठीक है, टैक्स से जो आते हैं वो गवर्नमेंट अपना
जो एक्सपेंडिचर है उसे भरते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स हम में से लेकर गवर्नमेंट भरते, दैट इज़ ए प्लस आइटम। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड को भेजना है, फैक्टर इनकम। करंट ट्रांसफ़र भी एब्रोड को भेजना है। सो ऑल दीज आर माइनस टर्म। सो एज यू कैन सी द expected and desired result. So the students, I can share these things to you. और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके देखना और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि अगर आपको कोई दिक्कत हुआ कि नहीं। देखिए, यह जो मैथमेटिक्स है, यह अगर आप नहीं समझ गए तो बहुत ही आपके लिए यह कठिन साबित होंगे। अगर आप लोग इसे प्रिसाइजली लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको यहाँ पर दिमाग यूज़ करके या इसे समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।